دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا، رب کعبہ کی بس پیروی کے لیے، رب کعبہ کی بس پیروی کے لیے، میرے سینے میں قرآن موجود ہے، میرے سینے میں قرآن موجود ہے، اور کیا چاہیے زندگی کے لیے، میرے سینے میں قرآن موجود ہے، اور کیا چاہیے زندگی کے لیے، ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرا دیا، رب کعبہ کی بس پیروی کے لیے، منکر و فاسق و بدعقید و ذرا، آؤ دے دوں تجھے نسخہ کیمیا، منکر و فاسق و بدعقید و ذرا، آؤ دے دوں تجھے نسخہ کیمیا، منکر و فاسق و بدعقید و ذرا، آؤ دے دوں تجھے نسخہ کیمیا، کہ منکر و فاسق و بدعقید و ذرا، منکر و فاسق و بدعقید و ذرا، آؤ دے دوں تجھے نسخہ کیمیا، سورہ قل هو اللہ پڑھتے رہو، سورہ قل هو اللہ پڑھتے رہو، اپنے ایمان کی پختگی کے لیے، سورہ قل هو اللہ پڑھتے رہو، اپنے ایمان کی پختگی کے لیے۔ اپنی امی سے بہت پریشانی ہے، اب تم ہی سوچو، صبح کے اذان سے پہلے ہی جگہ دیتی ہے، نماز کے بعد تلاوت نہ کروں تو ایک کپ چائے بھی نہیں ملے گی، پھر ورزش 1 گھنٹہ، ہوم ورک دم لینے کی فرصت نہیں، اب تم ہی بتاؤ سبلا بھائی۔ دانش بھائی اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ نماز، تلاوت، ورزش، ہوم ورک، یہ سب تو اچھی چیزیں ہیں۔ میری امی چپ سے اٹھتی ہے مگر میں فجر سے پہلے ہی بیدار ہو جاتا ہوں، نماز کے بعد بغیر کہے تلاوت کرتا ہوں، اور پھر 1.5 گھنٹہ ہوم ورک کرتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں ہر سال کلاس میں فرسٹ آتا ہوں۔ خبر نہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بزمِ کا اور یہ انداز ہے، اٹھ کے اب بزمِ کا اور یہ انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرا سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تیور نیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ضیاء القمر فلاحی صاحب، اور ابھی جو پروگرام ہو رہا ہے یہاں جو بچوں نے پروگرام پیش کیا ہے دارالفلاح منیارپور وارث نگر سمستی پور، اس کے یہ نگراں بھی ہیں، آرگنائزر بھی ہیں۔ ضیاء القمر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ ادارہ آپ نے کب قائم کیا؟ سب سے پہلے تو میں تیور نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ آئے اور میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ جون سے شروع ہوا ہے، ابھی تقریباً 5 ہی ماہ گزرے ہیں، لیکن بچوں کو جو ہم نے سینچا تو یہ احساس ہوا کہ اگر سماج کے سرپرست اور ذمہ دار تھوڑا سا بھی توجہ دیں
तो हमारे वो बच्चे जो गलियों में घूमते हैं, गोलियां खेलते हैं, नजिस रहते हैं, गंदे रहते हैं और उन्हें अपना शऊर नहीं रहता है, वो बाशऊर हो जाते हैं। जब हम उन्हें बाशऊर करेंगे तो यकीनन हमारा माशरा जो है बाशऊर होगा, अमन और शांति का गहवारा होगा। उन बच्चों के अंदर ये एहसास पनपा है कि असातिज़ा की इज़्ज़त कैसे की जाए, बड़ों की इज़्ज़त कैसे की जाए, मस्जिद में कैसे जाया जाए और रहा जाए, जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर कैसे रहा जाए, किसी बड़े से कैसे मिला जाए। तो ये सब बातें हमने 5 महीने के अंदर ही जो है देखी है। एक मिसाल दे रहे हैं आपको कि जब ये बच्चे शुरू में मस्जिद जाते थे, वज़ू करते हुए पानी एक दूसरे पर फेंकते थे, नमाज में शोर करते थे, लेकिन जब 2 महीना गुज़रा तो लोगों ने मुझे कहा कि आपके बच्चे अब शोर नहीं करते हैं, वज़ू करते हैं, तरीक़े से करते हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं नाकाम हैं, बच्चे नाकाम नहीं हैं, जिसकी नाकामी का हम रोना रोते हैं और फिर हमारे पास वो अफराद नहीं होते हैं जिन अफराद से हम मिल्लत के साथ साथ इस मुल्क को भी तरक्की दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके इस इदारे में कितने बच्चे हैं? अभी तकरीबन 40 के लगभग बच्चे हैं। उन तमाम के रहने, खाने, पीने, पढ़ाने का इंतज़ाम है और आइंदा साल फिर 10 से 15 बच्चों के दाखिला लेने का इंतज़ाम है। धीरे धीरे हम ऊपर उठ रहे हैं। जिस हिसाब से हमारी मदद होगी और लोग सपोर्ट होगा या हम जिस काबिल हैं, हम चाहते हैं कि आखिरी दम तक जब तक हम ये रहें, हम अपने कौम के साथ साथ इस मुल्क की भी खिदमत करें। अच्छा बच्चों को अभी जो पढ़ाई यहाँ हो रही है वो क्या क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? हमारे पास जो बच्चे आए उसमें 8वीं पास भी थे, 9वीं पास भी थे, 10वीं में भी थे, लेकिन उन्होंने अभी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया है। जब उन बच्चों को हम यहाँ लाए तो मेरी एक किताब है तोहफ़े शाहीन, इंशाअल्लाह मैं आपको भी दूंगा, जिसमें उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान के अल्फ़ाबेट्स हैं। वहाँ से हमने शुरू किया जो बच्चे 8वीं में थे और फिर उसको ख़त्म करते हुए इसी 5 महीने में हमने पहले क्लास की जो सरकारी हमारे बिहार बोर्ड की किताब है स्कूल की, उन तमाम किताबों को हमने इस्लामियात के साथ पढ़ाया और उसमें से 3 बच्चे अभी दूसरे क्लास में भी पहुंच गए हैं और वो किताबें भी ख़त्म हो रही हैं। तो हमारे यहाँ क्लास कायम नहीं है, बच्चों की सलाहियतों पर ध्यान देते हुए जो बच्चे जिस हिसाब से चाहें तरक्की कर सकते हैं। इसलिए कि बच्चों की उम्र हो चुकी है तो हम ज़्यादा तवज्जो देंगे तो बच्चे उसको कैच करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइज़र ऑल इंडिया मिली काउंसिल बिहार। मिर्ज़ा साहब ये बताइए कि आप अभी जिस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इस प्रोग्राम की क्या नौइयत है? ये प्रोग्राम जो है हाफिज़ प्लस 10+2 का है, जिसमें हिफ्ज़ के साथ 10वीं और 12वीं कराई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। ये प्रोग्राम जो है इसके निगरां हैं मौलाना जनाब ज़ियाउल क़मर फलाही साहब और इनके साथ असातिज़ा कराम है। ये प्रोग्राम जो सकाफ़ती और तक़सीम इनामात का प्रोग्राम है, जिसे बच्चों ने मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्राम किए हैं और उसी पे उन बच्चों को इनाम दिया गया है और हमारे साथ एक उलमा की बड़ी टीम आई हुई है और उसी में मैं शिरकी हो रहा हूँ। अच्छा इस प्रोग्राम से जो बच्चों में पैगाम जाएगा या उसके वालिदैन में जो प्रोग्राम जाएगा उसकी भी एक अहमियत है, तो आप क्या महसूस करते हैं? देखिए बहुत अच्छा माशाल्लाह बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया। ख़ासकर 2 प्रोग्राम मैंने बच्चों का देखा है, एक मुकालमे वाला और एक जो है बैतबाजी का। मैं समझता हूँ इससे माँ बाप में मुस्बत पैगाम ये जाएगा कि इल्म की तरफ बिलखुसूस हिफ्ज़ के साथ साथ 10+2 जो है इसके तरफ उनकी तवज्जो मरकूज़ होगी और वो ये चाहेंगे, बल्कि हमारी दावत भी है उनको कि इस मदरसे में, इस स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला वो करवाएँ और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारें। एक अच्छी पहल है और जिसको ज़ियाउल क़मर साहब ने किया है और इनके साथ जो असातिज़ा कराम उन्होंने। अभी आप जिस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इस प्रोग्राम की नौइयत क्या है और इसका पैगाम समाज में क्या जाएगा? ये प्रोग्राम दरअसल सीरत क्विज़, सीरत कंपटीशन तलबा के अंदर था। इसका मुकाबला हुआ सीरत का और इसमें तकरीबन 500 बच्चों ने शिरकत की। ये बड़ी कामयाबी है और इससे एक पैगाम जो सबसे बड़ा पैगाम है वो ये कि बच्चों के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का इल्म छोटे छोटे सवालों के और जवाबों के ज़रिए आया
इसमें कई मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल राबिया गर्ल्स पब्लिक स्कूल जो सोहरुल बेनीपट्टी के इलाके में वाक़ है, उसके शाम की जो क्लासेस हमने रखे हैं, स्पेशल क्लासेस, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो स्पेशल क्लास ये है कि जो 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं और ग्रेजुएशन के बच्चे हैं जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन बच्चों को हमने एक दीनी माहौल में शाम को 2 घंटे के लिए उनको दीनी तरबियत और उनकी दीनी तालीम देते हैं। इस सिलसिले में उनमें से 6 बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत की है, वो भी साथ आए हुए हैं। ये प्रोग्राम जो अभी मौलाना ज़ियाउल क़मर साहब ने कराया है, वाकई ऐसा प्रोग्राम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में होना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर उलूम इस्लामी और ख़ास तौर से सीरत नबवी का इल्म आए, ये बड़ी कामयाबी है। कि इस प्रोग्राम की क्या अहमियत है? ये प्रोग्राम जो मौलाना ज़ियाउल क़मर फलाही के ज़रिए किया जा रहा है, ये मिसाली प्रोग्राम है और हमने जो बच्चों को सुना और महसूस किया वो ये कि बहुत कम वक्त में कैसे बच्चों की तरबियत की जा सकती है और बच्चों के ज़रिए जो प्रोग्राम पेश किए गए वाक़तन वो मिसाली प्रोग्राम है। उसे जो कुछ इनाम दिया गया वो कम है, हम तो कहते हैं कि इससे बढ़कर इनाम देने की ज़रूरत है। मैं दिल की गहराई से मौलाना ज़ियाउल क़मर फलाही साहब को मुबारकबादी पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जिन उम्मीदों के साथ इस रास्ते पर चले हैं वो इंशाअल्लाह जल्द मंजिल तक पहुँचेंगे। प्रोग्राम से यहाँ के आवाम को क्या फ़ायदा होगा? इस प्रोग्राम से नई नस्ल तैयार होगी जिससे बेहतर समाज की तामीर होगी और इन बच्चों के मुस्तक़बिल में चार चांद लगेगा। इस तरह का प्रोग्राम और इस तरह का कोर्स तकरीबन हर ब्लॉक लेवल पर अगर चले तो ये समाज और ये उम्मत, ये मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। जब भी शाहे दो आलम कहो तज़किरा, बादब अपनी नज़रें झुका लीजिए। जब भी शाहे दो आलम कहो तज़किरा, बादब अपनी नज़रें झुका लीजिए और दुरूदों से महफिल सजा लीजिए, फिर मोहम्मद को अपना बना लीजिए और दुरूदों से महफिल सजा लीजिए, फिर मोहम्मद को अपना बना लीजिए। हाँ यकीनन मिलेगी शिफा आपको और मिलेगा अलग जायका आपको कि हाँ यकीनन मिलेगी शिफा आपको और मिलेगा अलग जायका आपको और मिलेगा अलग जायका आपको। अपनी आँखों में खाके दरे मुस्तफ़ा आप सुरमा समझ कर लगा लीजिए। अपनी आँखों में खाके दरे मुस्तफ़ा आप सुरमा समझ कर लगा लीजिए।